کہ برائلر مافیا مسلسل بے لگام۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں برائلر مرغی کے گوشت کی قیمت کا آج پھر تعین نہ ہو سکا۔ مارکیٹ میں مرغی کا گوشت 660 روپے جبکہ صافی گوشت 780 روپے فی کلو فروخت۔ انڈوں کی قیمت 303 روپے فی درجن کی سطح سے نیچے نہیں آ سکی۔ عبدالقادر سے مزید جانتے ہیں، بتائیے عبدالقادر۔ ہاں جی بالکل، آج جو پولٹری مصنوعات کے سرکاری نرخنامے جاری کیے گئے اس میں برائلر کی قیمتیں جو ہیں اس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا، مستحکم رکھی گئی ہیں، لیکن مارکیٹ میں صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ مارکیٹ میں من مانے داموں برائلر گوشت فروخت کیا جا رہا ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ سرکاری نرخناموں میں برائلر گوشت کے تعین جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا ہے، صرف زندہ برائلر کی قیمتوں کا تعین کیا جاتا ہے، اور یہ پالیسی اس لیے بنائی گئی تھی انتظامیہ کی جانب سے کہ شہریوں کو سستا برائلر گوشت دستیاب ہوگا، لیکن تاحال یہ پالیسی کامیاب ہوتی دکھائی نہیں دے رہی۔ آج سرکاری ریٹس میں فارم گیٹ ریٹ زندہ برائلر کا 383 روپے، ہول سیل زندہ برائلر 397 روپے، جبکہ پرچون زندہ برائلر کی قیمت 411 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ مارکیٹ میں بدستور اوور چارج کیا جا رہا ہے زندہ برائلر، اور سپلائی جو زندہ برائلر کی ہے وہ 397 روپے ہے، لیکن اس وقت مارکیٹ میں 430 سے 460 روپے فی کلو تک کی جا رہی، جس کے بعد مارکیٹ میں جو برائلر گوشت ہے وہ 650 سے 660 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے، اور صافی گوشت جو ہے 780 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ انڈوں کی قیمتوں میں بھی جو ہے وہ کوئی رد و بدل نہیں ہوا سرکاری ریٹ میں، لیکن مارکیٹ میں بدستور انڈے مہنگے داموں فروخت کیے جا رہے ہیں، اور سرکاری ریٹ میں فارمی انڈے 303 روپے فی درجن مقرر کیے گئے، تاہم مارکیٹ میں فی انڈا 30 روپے اور 330 روپے تک درجن انڈے جو ہیں وہ فروخت کیے جا رہے ہیں۔ ہول سیل مارکیٹوں کے لیے انڈوں کی پیٹی 8,970 روپے کی مقرر کی گئی ہے۔ جی آرمی چیف سید عاصم منیر کو بیٹن آف فیلڈ مارشل دینے کی تقریب۔ سید عاصم منیر کو بیٹن آف فیلڈ مارشل سے نوازا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف تقریب میں شریک ہوئے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے سید عاصم منیر کو بیٹن آف فیلڈ مارشل کا اعزاز دیا۔ وفاقی کابینہ کے اراکین، سروسز چیفز بھی تقریب میں موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو بھی تقریب میں شریک ہوئے ہیں۔ یہ مناظر بھی آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ آرمی چیف سید عاصم منیر کو بیٹن آف فیلڈ مارشل دینے کی تقریب ہوئی ہے۔ سید عاصم منیر کو بیٹن آف فیلڈ مارشل سے نوازا گیا، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف، قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف بھی تقریب میں شریک ہوئے ہیں۔ شاہپور کانجرا میں عارضی مویشی منڈی قائم کر دی گئی ہے۔ بیپاریوں کا منڈی میں سہولیات کے حوالے سے ملا جلا رجحان، کسی کا سہولیات کے فقدان کا شکوہ تو کوئی سہولیات سے مطمئن دکھائی دیا۔ عید قرباں قریب آتے ہی شہر میں مویشی منڈیاں سجنے لگیں۔ شاہپور کانجرا کی اصل مویشی منڈی زیر تعمیر ہونے کے باعث انتظامیہ نے عارضی منڈی قائم کر دی۔ شاہپور کانجرا کی اصل منڈی ایک ہفتے تک مکمل ہونے کا امکان ہے۔ بیوپاری منڈی میں سہولیات بارے شکایات کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ بعض نے جانوروں کے زائد پیسوں اور باڑ لگانے کے لیے پیسے لینے کی شکایت بھی کی۔ دوسری جانب بعض بیوپاری سہولیات سے مطمئن بھی دکھائی دیے۔ اتنے کوئی سہولت نہیں مل رہی، پانی اسی مل دا پینے ہیں، کھلی تے کوئی ادھر بنن دیندا تے کوئی آندا چھڈ کے ایں ٹر پا۔ سہولیات مکمل سانوں ملدیاں پیاں نے، وجہ ہے کہ منڈی نویں بنتی پئی ہے تے جڑا ڈاکٹر دا سسٹم ہے وہ جدوں نویں تیار ہوئے گی ادوں بنے گی۔ باقی واش روم، پانی، چھائے وغیرہ یا کوئی بھی سانوں آن کے کوئی تنگ نہیں کردا، سانوں سکون ہے۔ منڈی میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت جانور موجود، لیکن بیوپاری ابھی تک گاہکوں کی راہ تک رہے ہیں۔ مہنگائی کے باعث شہری ونڈو شاپنگ پر ہی اکتفا کر رہے ہیں۔ کیمرامین عمیر رئیس کے ساتھ زین علی، لاہور نیوز۔ بڑی عید کے لیے بڑی تیاریاں۔ شاہپور کانجرا منڈی سمیت 5 ٹیکس فری مویشی منڈیاں قائم کی جائیں گی۔ مویشی منڈیوں کی فعالی کے لیے 28 مئی کی ڈیڈ لائن دے دی گئی۔ عید الاضحیٰ کی مناسبت سے شہر میں 5 عارضی منڈیاں قائم کی جائیں گی۔ عارضی منڈیاں لاہور کیٹل مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے لگیں گی۔ ضلع انتظامیہ نے عارضی منڈیاں قائم کرنے کے لیے جگہ کا NOC جاری کر دیا۔ سگیا میں 25 ایکڑ رقبے پر عارضی مویشی منڈی سجے گی۔ سپورٹس کمپلیکس واقع میں 50 ایکڑ پر مشتمل عارضی مویشی منڈی لگے گی۔ برکی روڈ پر 8 ایکڑ، LDA سٹی 50 ایکڑ جبکہ رائیونڈ میں 25 ایکڑ پر مویشی منڈی قائم ہوگی۔ عارضی سیل پوائنٹس پر ڈینگی، کانگو اور لمپی
एंटी स्किन स्प्रे करवाने की हिदायत जारी। आरजी मवेशी मंडियों में टेंट, पीने के पानी और पार्किंग समेत दीगर सहूलियात फराहम की जाएंगी। आरजी मवेशी मंडियों में लाइटिंग, सिक्योरिटी और बैतुल कला फाल किए जाएंगे। सीईओ कैटल मैनेजमेंट कंपनी तासीर अहमद का कहना है कि शहरियों के लिए आगाही बैनर्स भी अवेजा किए जाएंगे। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, हेल्थ डिपार्टमेंट और महकमा पुलिस समेत दीगर इदारों की खिदमात ली जाएंगी। आरजी मवेशी मंडियां 28 मई से फाल कर दी जाएंगी। डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा ने असिस्टेंट कमिश्नर्स को आरजी मवेशी मंडियों में बेहतरीन इंतजामात की मॉनिटरिंग के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर ख़जाना पंजाब और पार्लिमानी अमूर मुश्तबा शुजाउर रहमान का कहना है कि भारत के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान के ऑपरेशन बुनियानुम मरसूम की कामयाबी पर पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को ऐसा जवाब दिया जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। ग्रेजुएट गर्ल्स कॉलेज शादबाग में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी के हवाले से पुरवकार तकरीब। वज़ीर ख़जाना पंजाब और पार्लिमानी अमूर मुश्तबा शुजाउर रहमान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। प्रिंसिपल गवर्नमेंट ग्रेजुएट गर्ल्स कॉलेज शादबाग समीना राव समेत तालिबात की कसीर तादाद में शिरकत। तालिबात ने मिली नगमों से शुरका का खून गरमाया। तकरीब से खिताब में वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान का कहना था कि जिंदा कौमें बुनियानुल मरसूस जैसे ऑपरेशन से दुश्मन के दांत खट्टे करती हैं। पाक चीन टेक्नोलॉजी से भारत को शिकस्त फाश दी। दहशत गर्दी पर काबू पाने का क्रेडिट नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और मरियम नवाज को जाता है। बुनियानुल मरसूस का मतलब है एक सीसा पिलाई दीवार, एक आहिनी दीवार, और अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान ने जो उनका ऑपरेशन संदूर था उसका जवाब एक सीसा पिलाई दीवार की तरह दिया। हम शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी खराज तहसीन पेश करते हैं और फील्ड मार्शल जनरल जनरल आसिम मुनीर साहब को भी खराज तहसीन पेश करते हैं। मुश्तबा शुजाउर रहमान ने पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगवाए। तकरीब के इख्तिताम पर मुश्तबा शुजाउर रहमान को शील्ड भी दी गई, जबकि उन्होंने प्लांट फॉर पाकिस्तान के सिलसिले में कॉलेज के अहाता में पौधा भी लगाया। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। मिली यकजहती कौंसल पंजाब के ज़ेर तमाम दिफाए वतन और कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस अफवाज पाकिस्तान को ऑपरेशन बुनियानुम मरसूम की कामयाबी पर खराज तहसीन पेश किया गया। मुकर्रीन ने कहा कि कौम अफवाज से तवक्को रखती है कि वह अपनी तवज्जो कश्मीर की आज़ादी और सरहदों की तहफ़्फ़ुज़ पर मरकूज़ रखेगी। मिली यकजहती कौंसल पंजाब के ज़ेर तमाम वहदत रोड पर दिफाए वतन और कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मजहबी जमातों और अक़लियती तंजीमों के कायदीन शरीक हुए। लियाकत बलोच ने कहा, पाकिस्तान की सलामती के साथ इज्जत और वकार से रहने का हक हासिल होगा। उन्होंने कहा, अभी जंग के खतरात टले नहीं, मोदी जिल्लत से दो चार है। पाकिस्तान अभी तक बहरानों से निकला नहीं है और इसी तरीके से हमारे दुश्मन हमारी इस अजीम व शान कामयाबी के बाद मज़ीद परेशान है और पाकिस्तान की सलामती के साथ हम सबको इज्जत और वकार से रहने का हक हासिल होगा। लियाकत बलोच का कहना था कि कौम में इत्तेहाद और इत्तफाक पैदा करना होगा। पाक फौज पूरी कमिटमेंट के साथ दुश्मन पर हमला आवर हुई तो फतह हासिल की। उन्होंने कहा, जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला तारीखी इकदाम है। पाकिस्तान में अक्सरियत भी अक़लियत भी पाकिस्तान की सलामती के लिए यकजान दो कालिब है। हमें इस पूरी वहदत को कायम दायम रखना चाहिए। इंशाअल्लाह दीनी जमातें अपने अपने दायरों के अंदर भी और कौमी सतह पर भी इसी वहदत और यकजहती का मुजाहरा करेंगे। सरदार अब्दुल गफार रोपड़ी और अलामा तनवीर जाफरी का कहना था कि पाकिस्तान भारत के मुकाबले में कमजोर था। जब पाकिस्तान ने हमला किया तो दुश्मन की सफ़ों में खलबली मच गई। अल्लाह पाक ने हमारी अफवाज को ऐसी ताकत दी कि दुश्मन जवाब ही न दे सका। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि भारतीय जहारियत के खिलाफ पूरी कौम ने भरपूर यकजहती का मुजाहरा किया। बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी में भारत मुलविस है। पंजाब लोकल गवर्नमेंट के इदारे मुल्क की तरक्की में ख़ास अहमियत रखते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने पंजाब लोकल गवर्नमेंट अकेडमी लाला मूसा में ज़ेर तरबियत ऑफिसर से गवर्नर हाउस में मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान ऑफिसर्स की तरबियत समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि भारत ने पहलगाम वाक़े का बहाना बनाकर रात के अंधेरे में इंसानी जानों और मसाजिद को निशाना बनाया। भारत को अपनी सरजमीन पर पाकिस्तानी फोर्सेस की तबाही कई नस्लों तक याद रहेगी। गवर्नर पंजाब ने कहा कि बलूचिस्तान में होने वाली हालिया दहशतगर्दी में भारत मुलविस है।
मासूम इंसानी जानों से खेलने वाले इन दहशतगर्दों को किसी सूरत मुआफ़ नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के ज़ेर एहतमाम प्राइवेट हज्जाज के एजाज़ में हज ट्रेनिंग सेशन का एहतमाम, जिसमें चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल और सेक्रेटरी जनरल हरमैन शरीफैन कौंसिल हाफिज़ ताहिर महमूद अशरीफ़ी ने बतौर मेहमान ख़ास शिरकत की। प्राइवेट हज्जाज के एजाज़ में हज ट्रेनिंग तकरीब। प्राइवेट हज ग्रुप के CEO बिलाल चिश्ती ने हज्जाज को सफ़र और मक्का मदीना में सहूलियात की फराहमी के हवाले से ब्रीफिंग दी। कॉर्पोरेट मैनेजर सैयद तहरीम इर्तिज़ा ने हज्जाज को फराहम करदा सहूलियात की तफसील फराहम की। पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा इस्लामिक स्टडीज़ के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद हमाद लखनवी ने भी बतौर मुअल्लिम शिरकत की। हज की फजीलत, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और मनासिक के हज के बारे में बयान किया। मोटिवेशनल स्पीकर मोहम्मद अली ने भी हज की फजीलत के बारे तफसीली खिताब किया। मैं और आप हम सब जो हज के लिए जा रहे हैं, हम अपनी नीयतों को खालिस कर रहे हैं, और नीयतों को खालिस करने का मतलब ये है कि हमने हर सुन्नत पर इंशाअल्लाह अमल करना, हमने अल्लाह का हर हुक्म मानना है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हर हुक्म मानना। उसके अंदर अगर कोई हमारे दिल में रियाकारी जैसा मैल कुचैल आता है, रियाकारी इतना खौफनाक एक शाइबा है जो अगर किसी चीज़ में पैदा हो जाए, और इतना खौफनाक अमल है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे सबसे ज़्यादा जो डर है ना तुमसे, वो छोटे शिर्क का है। मौलाना ताहिर अशरफी का इस मौका पर कहना था, पाकिस्तान से इस साल 1,25,000 आज़मीन हज की सआदत हासिल कर रहे हैं। नफली हज करने वाले जो अफराद रह गए वो फ़लस्तीनी भाइयों की इमदाद करें। फ़र्ज हज वाले जो हैं वो तो लाजमी बात है, उन्होंने करना है, वो अपने पैसे महफूज करें। जो भी नफली हज वाला क्या करे, तो मैंने कहा वो 2 सवाब कमा लें। जिसका नफली हज था वो 2 सवाब कमा लें। हज का तो उसको सवाब मिलना ही मिलना है, उसने पैसे जमा करा दिए, इरादा कर लिया, हर चीज़, वीज़ा नहीं मिला, ये तो नीयत, ये दीन इस्लाम इतना आसान है, थोड़ी सी नीयत ठीक कर लो, अल्लाह ताला अजर दे देता है। तो मैंने कहा ये पैसे इस वक्त इस उम्मत में सबसे ज्यादा मुस्तहिक लोग वो हैं जो आपके फ़लस्तीनी भाई हैं। अल्लामा ताहिर अशरफी का मजीद कहना था, सऊदी अरब के निज़ाम को फॉलो करना लाजिम है। कैमरामैन सुहेब के साथ मोहम्मद अली, लाहौर न्यूज़। गर्मी की शिदत बढ़ते ही लेस्को रीजन में तकनीकी खराबियों की भरमार। हीट वेव ने लेस्को की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। बदतरीन लोड शेडिंग से शहरी बेहाल, कहते हैं गैर एलानिया लोड शेडिंग ने जीना मुहाल कर दिया। बिजली की बंदिश ने दिन रात का सुकून छीन लिया है। शदीद गर्मी ने लेस्को का तरसीली निज़ाम दरहम बरहम कर दिया। लोड बढ़ने से ट्रांसफार्मर जलने के वाक़यात में इजाफा। लेस्को की अपग्रेडेशन भी जुबानी जमा खर्च साबित हुई। लेस्को रीजन में रोजाना की बुनियाद पर औसतन 100 से 120 ट्रांसफार्मर खराब हो रहे हैं। शाहदरा, गुलशन रावी, बंद रोड, हमजा टाउन, निश्तर कॉलोनी, काना, फिरोजवाला में भी बिजली की आंख मचोली जारी है। अरबंसपुरा, गड़ी शाहू, वाल्टन रोड, शादबाग और शाह आलम के मुतादिद इलाकों में भी घंटों बिजली बंद रहने लगी। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज शदीद गर्मी में शहर के मुतादिद इलाकों में दिन भर बिजली बंद रही। गड़ी शाहू के इलाके में भी रात भर बिजली बंद रही। शहरी कहते हैं गैर इलानिया लोड शेडिंग ने जीना मुहाल कर दिया है। दिन को सुकून मिलता है, न रात को नींद आती है। कल 7 बजे बंद हुई है और रात को भी जाके कोई 4-5 बजे की सुबह आई है जाके ना, सारी रात पूरी रात लाइट बंद रही है। बड़ा मसला रहा है। हमारी यहाँ पे शॉप है, उसमें बड़ा मसला रहा है सारा, वो हमारी बोतलें सारी ख़राब हो गई हैं। उनको तो पहले फॉल्ट नहीं मिला, जब फॉल्ट मिला तो कहते हैं जी सीढ़ी लेने गए हैं। सीढ़ी जो है वो आधे पौने घंटे तक आई है, फिर जाके उन्होंने फॉल्ट ठीक किया है। फिर कोई 3 बजे तक लोग सड़कों पे रहे हैं। 3 सवा 3 लाइट आई है तो सारे अपने घरों को गए। लेस्को की जानिब से निजी सोसाइटीज के ट्रांसफार्मर तब्दील नहीं किए जाते। सार्फिन को अपनी मदद आप के तहत ट्रांसफार्मर मरम्मत करवाना पड़ते हैं। कैमरामैन इरफान के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़।